اوکے سو انشاءاللہ پہلے دعا ریوائز کر لیتے ہیں. اللہم سلمنی لرمضان اللہم صلی اللهم صل رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان وتسلم منی متقبلا وتسلمہ منی مني متقبلا. متقبلا. دعا کا مطلب یہ ہے کہ او اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور ہم سے قبول کرنا. یہ دعا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی اپنی ساری شاپنگ مائنڈ اپ کریں، کوکنگ مائنڈ اپ کریں، جو بھی ہمارے اور دوسرے ضروری کام ہے، گھر کی صفائیاں ہیں جو ہم اکثر عید سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ سب آرگنائز کرنا، کلازٹس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، سب ہم یہ رمضان سے پہلے اپنے نپٹا لیں کام. اسی طریقے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو تھے، یہ صرف یہ ان کے پاس ظاہر ہے یہ والے کاموں کی تو لسٹ نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہمارے کام ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے کہ اپنی نمازوں کی حساب کتاب پورا لکھتے تھے. دیکھیں نماز جو ہے نا وہ ہماری جو بھی ہم ادا کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نماز تو فرائض میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرائض کی تو اجازت نہیں ہے نا چھوڑنے کی. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہر سال، اول تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ اگلی نماز سے پہلے پہلے یا اگلی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر لے، ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اب اتنی غفلت ہو جاتی ہے ہم نے، کیونکہ ہماری نمازوں کا جو حساب کتاب ہے وہ ہمارے بالغ ہونے سے کاؤنٹ ہوتا ہے. بالغ کا مطلب پیوبرٹی سے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جب ہماری اگر لڑکے ہیں 15 ایئرز یا جب بھی ان کی پیوبرٹی اسٹارٹ ہوئی ہے، اور لڑکیاں ہیں تو جب بھی ان کی پیوبرٹی اسٹارٹ ہوئی ہے، اس ٹائم سے یعنی اس دن سے اب آپ نے کوئی نماز چھوڑی یا کوئی روزہ چھوڑا یا پھر آپ نے جو بھی اللہ نے فرائض میں آپ کی چیزیں رکھی ہیں وہ چھوڑی، تو اس کا تو پھر آپ کو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی سے لون لیا ہو اور اب آپ نے اس کا لون اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے. تو فرائض جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہی ہے ہمارا یہ نماز کا ادا کرنا اور روزے کا رکھنا. اب کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہماری نماز اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو ہم پورا جوے استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں اپنی نماز کی قضا کرنے کی، اور پھر رائٹ جوے ہم اپنی نماز کو پڑھ کے فارغ کر دیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے ظہر قضا کی تھی، ہم عصر کے ساتھ، عصر قضا ہو گئی خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو مغرب کے ساتھ اس کو ادا کر کے تاکہ آپ کے ذمے کوئی لون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واپس کرنے جیسا آپ کے پر نہ رہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی پچھلی لائف کو دیکھیں پیورٹی کے ٹائم سے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی تو خیر ابھی ایج اتنی نہیں ہے، تو کسی کے 2 سال، کسی کے 1 سال، کسی کے 3 سال، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کی پیورٹی آئی ہی نہیں ہے تو اس کا تو ابھی حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ 7 سال سے بچے کو نماز کی عادت ڈال دینی چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تاکہ وہ اس کو جب پیورٹی تک پہنچے تو وہ اس کی ہیبٹ میں آ جائے نماز پڑھنا. ہم کیسے بچوں کو کنڈر گارڈن بھیجتے ہیں نا، کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سینس نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو اسکول گوئنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسکول میں، اور کنڈر گارڈن رکھا اس لیے کہ وہ گریڈ 1 تک آنے تک پریپیئر ہو جائے اسکول کی روٹین سے، صبح اٹھنے سے، آنے سے، چھٹی کے ٹائم تک. تو سیم ایسے ہی کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے کہ 7 سال سے بچے کو نماز پڑھنے کا بولنا شروع کر دو. 7 سال سے وہ پڑھتے 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 اتنا تو یوز ٹو ہوگا نا کہ جا نماز پہ آئے گا، کھڑے ہوگا، ہو سکتا ہے پوری صحیح سے نماز پڑھے بھی نہیں، بھاگ جائے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اس ٹائم پہ 5 وقت آنا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے. اور پھر 11 12 کے ہوتے 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 اس کو اتنا سینس ڈیولپ ہو جائے کہ ہاں بھائی اب مجھے اپنی نمازوں کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کی فکر کرنا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 7 سال سے بچے کو نماز کی عادت ڈالنا شروع کر دو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دو، نماز پڑھی کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، کھڑے کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو صرف ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے نا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجد میں اپنے بچوں کو باقاعدہ ڈانٹتے ہوئے کہ اب 7 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھے، 8 سال کے ہوئے. نہیں، ان کو گناہ نہیں ہے جب تک ان کی پیورٹی اسٹارٹ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے تو اس وجہ سے 7 ایئرس کا بتایا گیا ہے کہ 7 ایئرس میں آپ بچے کو اب نماز کا بولنا شروع کر دو. 1 to 7 وہ کھیلتا ہے کودتا ہے اپنا،
लेकिन 7 पर उसको अब नमाज का बोलना शुरू कर दो। आप अगर घर में हैं, आपको अंदाज़ा है कि सिबलिंग्स नमाज पढ़ने की हैबिट नहीं है उनकी, तो एटलीस्ट, और वो बालिग भी हैं, वो प्यूबर्टी पे भी हैं, तो एटलीस्ट आप एक रिमाइंडर ज़रूर दो एवरी नमाज के टाइम पे कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। अब अगर नहीं पढ़ा तो घर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हैबिट डेवलप होते हैं, लेकिन उसे कान में तो आवाज़ जानी चाहिए कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें वो हमारे कुछ साल शुरू के मिस हो गए होते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 15, राइट। अब वो क्या है कि वो रोज़ की एवरीडे की जो 5 नमाज हमारे दिन में कज़ा हो गई है, वो तो हमारे ऊपर लोन है ना, वो तो हमें पे बैक करना ही करना है, ठीक है। जैसे लोन पे बैक करना है अगर आपने बैंक से लिया, इसी तरीके से नमाज भी एक तरह का लोन है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो पे बैक करना ही करना है। तो रमज़ान की तैयारी में ये चीज़ भी शामिल है कि आप बैठ के अपनी प्यूबर्टी की को याद करें, कौन से टाइम पे स्टार्ट हुई, ठीक है, पीरियड्स कौन से टाइम पे स्टार्ट हुए, और उस टाइम से लेके अंदाज़ा पूरा लगा के कि हमने अब कितनी नमाज़ें अपनी ज़ाया कर दी, कितनी नमाज़ें ऐसी जो हमने अदा ही नहीं की, और हमने अगर कज़ा हुई भी तो उसकी कज़ा जोहर में कज़ा हुई थी तो असर में, या असर में कज़ा हुई तो मगरिब में, या नेक्स्ट डे में हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट डे का जब सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे तो भूल जाते हैं ना, इसलिए कहा है कि एक नमाज कज़ा हो तो फ़ौरन अगली नमाज के साथ उसको अदा कर लें, ठीक है। अव्वल तो कोशिश पूरी होनी चाहिए कि नमाज कज़ा हो ही नहीं, लेकिन अगर हो जाती है, इंसान है ना, अगर हो जाती है और कोई रीज़न से, कोई वजह से हो जाती है जो जेन्युइन रीज़न है, तो आपके अगली नमाज के साथ फ़ौरन उसको फारिग कर दे अदा करके, क्योंकि ये लोन है, ये ज़िंदगी में कभी ना कभी पे बैक करना है। और लोग करते हैं, लाइक 40 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, सडनली रियलाइज होता है ओ हमने तो अपने प्यूबर्टी के टाइम से नमाजें पढ़ी नहीं, फिर वो लिखते हैं, पूरा हिसाब बनाते हैं कि अब आप 365 डेज के इंटू 5 करते हैं, अपना टोटल निकालते हैं कि भाई इस साल की हमारी इतनी नमाजें कज़ा हैं, और फिर एक कॉपी बनाते हैं जिसके ऊपर टिक मार्क करते जाते हैं, हर नमाज के साथ 2-2 नमाजें पढ़ते जाते हैं, फजर के साथ फजर पढ़ ली, जोहर के साथ जोहर की कज़ा पढ़ ली, असर के साथ असर, मगरिब के साथ। मैंने देखे हैं बाकायदा ऐसे लोग, बल्कि एक हमारे जानने वालों में, उन्होंने कहा उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की पूरी कज़ा नमाजें उन्होंने अपनी अदा कर दी। कितनी बड़ी बात है ना कि आपकी लाइफ की कोई नमाज ही कज़ा नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। मेंटेन तो ये करना चाहिए कि नमाज कभी बचपन से कज़ा हो ही ना, आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद तक की नमाज कभी कज़ा नहीं हो, इतनी फिक्र आपको अपनी नमाज की होनी चाहिए। और यकीन करें जो 40 डेज तक नमाज पढ़ लेता है ना, उसके बाद उसकी वो ऐसी हैबिट बन जाती है, अगर कोई 40 डेज तक नमाज को ना छोड़े, नमाज की फिक्र करके 5 वक्त नमाज पढ़े, उसकी ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो नमाज जब छूट रही होती है ना, वो कहीं पर है, उसको फिक्र शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि लाइक मेरी नमाज ज़ाया हो रही है, मुझे नमाज पहले पढ़नी है। आप मॉल में होंगे, आप कहीं भी होंगे, आप जगह ढूंढ ही लेंगे। बाद लोग एक्सक्यूज करते हैं मॉल में तो कैसे पढ़ते हैं हम यहाँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जगह ढूंढ ही लेते हैं। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आपको फिक्र होनी चाहिए, और आप वजू में होने चाहिए, और वजू नहीं, ये तो एक छोटी सी बॉटल से बहुत आसान है कि सिर्फ एक दफ़ा मुंह धो लिया, एक दफ़ा हाथ धो लिया, एक दफ़ा पाँव धो लिया, एक दफ़ा सर के ऊपर हाथ फेर के मसा कर लिया, दैट्स इट, आपका वजू हो गया। फराइज यही 4 है, 3-3 दफ़ा धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सब सुन्नतों में है। तो आपने अगर बहुत रश में है, सफ़र में है, मॉल में है, कहीं ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं इतना टू मच टाइम नहीं है, एक दफ़ा हाथ धोया, एक दफ़ा मुंह धोया, एक दफ़ा पाँव धोया, और एक दफ़ा सर का मसा, ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है नमाज की, वज़ू की। अगर आपने ये अदा कर लिया, फिर भी वज़ू हो जाता है आपका, ठीक है। तो वज़ू इतना सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि पानी होगा, बहुत सारा होगा, बाथरूम होगा तभी। तो छोटी सी एक जो मिनरल बॉटल होती है छोटी, जो पानी के हम साथ रखते हैं, उससे भी ये कर सकते हैं कि हल्का सा आपने पानी हाथ में लिया, और ये 4 अपने कहीं किसी कोने में खड़े होकर, आप मॉल में पिया तो पिया, और कहीं भी आपने एक छोटी सी ट्रैवलिंग वाली जानी है, हर वक्त अपने साथ रखी, बिछा ली, नमाज पढ़ ली। नहीं भी मिला, कोई न्यूज़पेपर बिछा लिया जिसपे पिक्चर नहीं बनी, कुछ भी, तो आपको पाक जगह पे पढ़ना है ना नमाज, तो आपने कुछ भी बिछा लिया, वो फिर आपकी हैबिट बन जाती है। बहुत से लोग ट्रैवलिंग वाली जान नमाज अपने साथ रखते हैं, वो छोटी सी होती है, बिल्कुल पर्स के अंदर आराम से आ जाती है, छोटे से बैग में आराम से आ जाती है, बिल्कुल आपकी फिस्ट में आ जाती है, इतनी छोटी सी कोई उसका कपड़ा होता है। तो बिछाना ज़रूरी नहीं कि बड़ी मोटी जानिमाज़ ही होती तो उस पर नमाज होगी। बहरहाल ये सब है कि नमाज को संभालने के तरीके हैं कि नमाज को किस तरीके से फ़िक्र करनी चाहिए, किस तरह से संभालना चाहिए। अब रमज़ान आने के टाइम पे क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रमज़ान एक्चुअली रिमाइंडर होता है कि अगर आपने 11 मंथ में कुछ मिस कर दिया है,
तो रमज़ान एक्चुअली ये रिमाइंडर होता है कि भाई अब अपने आप को अलर्ट कर लो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, बहुत गफलत हो गई है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में टाइम चले गया, तो अब अलर्ट हो जाए। तो अब अलर्ट में ये चीज़ भी शामिल है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी अपनी ईद की शॉपिंग की, कुकिंग की, और लास्ट टाइम हमने बात की थी किस तरह हम बाजार जाने के कामों को वाइंड अप कर लें, अपने अगर कोई एक्स्ट्रा टास्क है, कोई क्लीनिंग के हैं, जो भी वो सब हम वाइंड अप कर लें। इस दफ़ा हम ये बात करते हैं कि नमाज़ों को हम कैसे संभालें, नमाज़ों को हम किस तरीके से रमज़ान में नमाज़ों की क्या फ़िक्र करनी होती है हमें। रमज़ान आने से पहले तो ये फ़िक्र करनी होती है, जो सहाबा इकराम किया करते थे कि रमज़ान से पहले वो अपना जो हिसाब किताब करते थे ना, तो हमारा हिसाब उनके पास तो कोई नमाज़ क़ज़ा नहीं होती थी ना, क्योंकि जब कोई इंसान कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने पढ़ा, उसके जितने पीछे के गुनाह सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं। उसके ज़िम्मे में कोई नमाज़ नहीं। अगर वो 50 इयर्स का था और एक सहाबी के बारे में आते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जिहाद पर थे, वो नॉन मुस्लिम थे। वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्हें आके बोला मुझे इस्लाम कबूल करना है। नहीं, उन्होंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा जिहाद करने के लिए आए हैं हम, और हम किसी नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे भी मुसलमान होना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के वो कहने लगा मैं भी जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। तो सामने सब लड़ाई हो रही थी, वो उसके अंदर शामिल हो गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो सहाबा इकराम को तो क्योंकि नहीं पता था, वो नई शक्ल थी ना उनके लिए, बहुत से लोग तो उस वक्त नहीं थे वहाँ पे मौजूद। तो उन्होंने कहा ये समझ नहीं आ रहा कि ये दुश्मनों की यानी कि नॉन मुस्लिम्स के पीपल में से है या ये हमारे में से है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई ये तो इतना अच्छा जन्नती है कि इसने ज़िंदगी में कभी एक नमाज भी नहीं पढ़ी और ये सीधा जन्नत में चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि जब उसने कलमा पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, और जब वो जिहाद में लड़ने के लिए गया तो शहीद हो गया। और जब शहीद हो गया तो उसके पीछे तो कोई ना नमाज क़ज़ा थी, ना रोज़ा क़ज़ा था, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने तो उसको सब माफ़ कर दिया था और वो सीधा जन्नत में चला गया। तो वो आदमी वाहिद ऐसा था कि जिसने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी और वो जन्नत में चला गया। क्योंकि हम बाय बर्थ मुस्लिम हैं तो हम इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हमें ना सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी नमाज़ों को संभालने की करनी है, सबसे ज़्यादा फ़िक्र। क्योंकि पहला सवाल जो कब्र में ग्रेव में पूछा जाएगा वो आपकी नमाज के बारे में होगा। और नमाज के बारे में अगर जो सवाल होंगे वो आपने पास कर लिए तो बाकी सारे सारे क्वेश्चंस आप पास कर सकते हैं। तो इसलिए नमाज की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करनी है। अब करने का काम क्या है कि अपनी प्रियोरिटी सोचें, एक कॉपी बनाएं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कि हमारी टीचर ने हमें बताया था और उस वक्त से मेरे पास तो मेरी कॉपी बनी हुई है, एक नोटबुक आपने बनानी है जिसके अंदर आपने अपनी कज़ा नमाजें, ठीक है, आपने सोचना है मेरी प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई थी। लेट्स सपोज 2017 में स्टार्ट हुई है, 19 में स्टार्ट हुई है, अब आपके 19 की कितनी नमाजें क़ज़ा थी आपने देखा। अब इस 365 डेज हैं, ठीक है, अगर मैंने पढ़ी ही नहीं है तो एवरी डे की 5 नमाज, ठीक है। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 5 आप कर लो, जो भी टोटल आएगा, यानी आपकी एक साल की इतनी नमाजें होती हैं, ठीक है। अब आपकी अगर एक साल की इतनी नमाजें हैं और 3 साल से आपने नमाजें छोड़ी हैं, तो फिर आप अपना टोटल खुद ही कर लो कि आपका कितनी नमाजें आपकी जो है वो मिस हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर कि 365 इंटू 5, राइट, तो ये हो गया 1825, राइट। तो आपकी एक साल की जो नमाज बनती है वो 1825 बनती है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से रख लो कि फजर 365, ज़ोहर 365। आपको लगता है नहीं मैं ज़ोहर तो फिर भी पढ़ लेती थी, तो ज़ोहर में आप कम कर लो, असर में फिर भी पढ़ लेती थी तो चलो 300 हो गई, नहीं तो 200 हो गई, जो भी। नहीं, मैं मगरिब भी पढ़ लिया करती थी, इशा में छोड़ देती थी, लंबी नमाज होती थी, मैं टायर्ड हो गई थी, तो इशा तो मुझे 355 पूरी की पूरी मेरी कज़ा है। तो आपने इस तरह फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा उस डायरी के अंदर नोट किया, आपने नंबरिंग की, ठीक है, और आपने नंबरिंग करके नमाज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। नियत क्या करनी होती है? या अल्लाह मेरी जो सबसे पहली वाली नमाज़ क़ज़ा थी मैं सबसे पहले वो अदा करूँ, क्योंकि आपको खुद भी याद नहीं है कौन सी नमाज़ पहले क़ज़ा थी, ठीक है। आखिरी वाली पहले नहीं पढ़ते, जो सबसे पहली है उसकी नियत करके उसको अदा कर देते हैं। तो एक तो अपनी लाइफ में हमेशा से ये हैबिट रखें कि नमाज कभी कज़ा हो उसको हाथ के हाथ अगली नमाज के साथ पढ़ के फारिग कर दें। क्योंकि आप लोगों की कभी एज इतनी कम है, हम लोग की तो फिर भी इतनी हो गई कि हम अगर अपनी बैक स्टोरी सोचें तो हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने कभी हमको ये इतना वार्न किया नहीं था, कभी इतना समझाया नहीं था कि नमाज़ों को अगर छूटनी है तो कज़ा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हाँ, बोलते थे पेरेंट्स की नमाज़ पढ़नी है, लेकिन ये नहीं कि नमाज़ छूटी है तो कज़ा भी पढ़ना है, छुट्टी क्यों है,
अगली नमाज के साथ उसको मिला के पढ़ लो। तो जब आप लोग तो माशाल्लाह बहुत 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 खुश नसीब हो कि आपको कोई बताने वाला है ये बात, ठीक है। तो जब बताने वाला है तो फिर इस पे अमल भी फौरन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आपको वो रिग्रेट नहीं हो जो हमें है कि जब हम बैक ऐसे सोचे तो इतनी नमाजें कैसे अदा होंगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अपनी कॉपी बनानी है, अपनी नोटबुक बनानी है जिसमें अपनी नमाज़ों को लिखना है। खुदा ना खास्ता कोई नमाज अगर क़ज़ा हो रही है तो उसका हिसाब किताब लिख के उसको अदा करना है, ठीक है। दूसरी हैबिट ये बनानी है कि नमाज राइट अवे अगली नमाज के साथ पढ़ के फ़ौरन फारिग कर देना है, ठीक है। तीसरी हैबिट ये बनानी है, कहीं घर से बाहर भी हैं तो नमाज़ों की ज़रूर फ़िक्र करनी है, नमाज़ें क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमाज एनी हाउ आपको बाद में भी पढ़ के लौटाना ही है और फिर इस्तग़फ़ार के साथ लौटाना है। पता नहीं अल्लाह उसको माफ़ करेगा नहीं करेगा। तो फिर हम अगर अननेसेसरी क़ज़ा की है तो फिर कोई रीज़न भी नहीं है वैलिड आपके पास, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आपकी पकड़ नहीं होगी। तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी है, ठीक है। इसी तरीके से ये नमाज़ों की फ़िक्र के साथ-साथ हाँ, नमाज़ों में एक चीज़ की और फ़िक्र करनी है और वो ये है कि आपके दादा-दादी, नाना-नानी, ठीक है, ये आपके बहुत करीबी रिश्ते होते हैं और इनकी नमाज़ों की फ़िक्र भी आपने करनी है। अगर आपके दादा-दादी, नाना-नानी या कोई एल्डर ताया-ताई में से कोई आपके साथ ऐसा रहता है जो सिक है और वो अपनी नमाज़ों की खुद से फ़िक्र नहीं कर सकता है, तो आपने उनको भी प्यार से रिमाइंडर देना है कि नमाज का टाइम हो गया। अब क्या होता है कि जो बूढ़े होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हम कैसे वज़ू करेंगे, कैसे वॉशरूम जाएँगे, कैसे नमाज अदा करेंगे। तो आपने उनकी ये फ़िक्र करनी है कि आपने या तो उनको तयम्मुम करवाना है। तयम्मुम क्या होता है कि अगर कोई बिल्कुल वॉशरूम जाने के काबिल नहीं है ना, तो एक मट्टी की एक बैग बना के जिसमें से हल्की-हल्की मिट्टी निकल रही हो, रेत निकल रही हो, ठीक है? वो उनके पास या कोई ऐसा पत्थर जो हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो जो गमले होते हैं, जो जो जिसके अंदर हम प्लांट को लगाते हैं, वो मिट्टी के बने हुए होते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से थोड़ी-सी मिट्टी झड़ती हो, ठीक है? वो टुकड़ा या फिर कोई बैग, बहुत ईज़ी तो ये होता है कि कोई ऐसा बैग आपने का कपड़े का सी लिया जिसके अंदर आपने मिट्टी भर दी और जब आप उसको हाथ मारेंगे तो थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी का धुआँ निकलता हो, ठीक है? उस पे हाथ मारते हैं एक दफ़ा और उससे अपने हाथ को फेर लेते हैं। उस पे हाथ मारते हैं और उससे फिर अपने पाँव पे एक दफ़ा फेर लेते हैं। मसा का तयम्मुम का तरीका हम यूट्यूब पे कभी भी जाके देख सकते हैं तयम्मुम कैसे करते हैं। तयम्मुम क्या होता है, वो रिप्लेसमेंट होता है पानी का। पानी का रिप्लेसमेंट होता है जब पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, या कोई ऐसा मरीज़ है, कोई ऐसा बीमार है लेकिन उसकी कंडीशंस है, कितने किलोमीटर तक पानी नहीं है तब आप तयम्मुम करेंगे, या पानी बहुत ही थोड़ा है, पीने को बस नहीं होगा, आप सफ़र में हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस है, लाइक उसको भी समझना ज़रूरी है। लेकिन इन शॉर्ट में भी अभी सिर्फ जो बात करी हूँ हमारे लिए नहीं कर रही कि वॉशरूम में कोई है, वो नमाज का टाइम जा रहा है तो चलो हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। पानी की कंडीशंस है कि पानी कि क्या-क्या सूरतें हैं कि पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ उनकी जो सिक है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं सिर्फ़ वज़ू बनाने के लिए और उनकी नमाज़ इस वजह से ज़ाया हो रही है, तो आपने उनको हेल्प करना है कि मैं आपको तयम्मुम करवा देती हूँ। आप नमाज़ लेटे-लेटे अदा कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फ़र्ज़ किया कि नमाज को अदा करना है। अगर आप अच्छी अच्छी हेल्थ कंडीशन में हैं तो ज़ाहिर है खड़े होके, अगर बैड हेल्थ कंडीशन में हैं तो आप बैठ के पढ़ें। अगर उससे भी बैड कंडीशन में तो आप लेट के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर उससे भी बैड कंडीशन में है तो आप सिर्फ़ इशारा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नमाज को अपने टाइम पे आप अदा कर लें, ठीक है? तो अब आपको ये तो पता है कि वो सिक है, उनकी कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन में वो कैसे नमाज़ अदा करेंगे। तो हम जब उनको फ़िक्र दिलाते हैं ना तो फिर उनको फ़िक्र आती है कि हाँ, नमाज़ भी कोई चीज़ है, राइट? तो हम क्या करें कि वो अगर अगर वॉशरूम नहीं जाने के काबिल हैं, तो फिर हम उनको तयम्मुम करवा दें। यानी मिट्टी से उनका हाथ और पाँव जिस तरह से एक तयम्मुम का तरीका आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तयम्मुम डालो तो तयम्मुम आ जाता है उसके ऊपर। आपने देख लिया तयम्मुम कैसे करते हैं, आपने उनको वज़ू करा के एक दफ़ा उनको रिमाइंडर दे दिया कि चले नमाज़ पढ़ लें। लेटे-लेटे पढ़ लें, इशारे से पढ़ लें, तो क्या होगा उसका रिवॉर्ड आपको भी मिलेगा कि आपने उनकी नमाज़ बचा ली, ठीक है? आपने उनकी नमाज़ नहीं ज़ाया होने दी, आपने इतनी फ़िक्र रखी उनकी नमाज़ की, अपने पेरेंट्स की नमाज़ की जब वो ओल्ड हो जाए तो। हो सकता है जब आपके पेरेंट्स ओल्ड हों उस टाइम पे ये बातें बताने वाला कोई हो ही ना, तो आपने अभी से इसको ज़हन में रखना है कि हाँ, हमारे अगर पेरेंट्स ओल्ड हैं, सिक हैं, खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी परेशानी वाली बात, हमने उनकी फ़िक्र करनी है। उस टाइम वो सेंसेस में नहीं है कि वो अपनी तकलीफ़ में अपनी नमाज़ों की फ़िक्र कर सके, तो क्योंकि हम उनके लिए सदका जारिया है ना, हर औलाद अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया होती है। तो हमें उनके नमाज़ों की फ़िक्र करनी है कि हम उनको तयम्मुम करवा दें या उनको पकड़ के वॉशरूम तक ले जाएँ, उनको वज़ू करवा दें।
اگر وضو واشروم جانے کے قابل ہے تو وضو تھوڑا سا کروا دے، صرف فرض کی وضو کروا دے جیسا میں نے بتایا، اور پھر ان کو اگر وہ لیٹنے کی کنڈیشن میں تو لیٹ کے، اشارے کی کنڈیشن میں پڑھ سکتے اشارے، بیٹھ کے پڑھ سکتے بیٹھ کے، لیکن آپ تھوڑا سا ان کو جیسے کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنا نماز کے لیے، یہ ایک بہت بڑی مسنگ چیز ہے ہمارے آج کل کی جنریشن کے اندر، تو اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہے ہی نہیں ہے، لیٹ سپوز دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی، یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رہے ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے نا تو پھر آپ نے ان کی پوری قضا نمازوں کا حساب نکالنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا جو ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ ایک ٹائم کی نماز کا اتنا فدیہ جائے گا اتنا آپ نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، یعنی ڈونیٹ کرنا ہے پیسہ، یا پھر کسی کو کھانا کھلا کے ڈونیٹ کرنا ہے، یا پیسہ ہی ڈائریکٹ ڈونیٹ کرنا ہے، وہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ ہر ایرا میں اس کا ہر ایئر اس کا اماؤنٹ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس کی پرائز بھی چینج ہو جاتی ہے نا، کہ کتنے ٹائم کا 2 ٹائم کا کھانا اگر ایک آدمی کو کھلانا ہے تو کبھی وہ 10 روپے کا آتا تھا تو پھر وہ 50 کا ہو گیا، پھر 100 کا ہو گیا، تو اب یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا ریٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر کے ایک ساتھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا جیسے بھی اس کو ادا کرنا اولاد کے اور نواسا نواسی پوتا پوتی ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کی قرض، کیونکہ وہ لون ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یا تو نماز پڑھ کے ادا کریں گے، اور اگر نماز اب وہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی نمازیں آپ پڑھ کے ادا کریں گے، وہ ختم ہو گئے، وہ مر گئے، ختم، اب آپ پیسے سے ادا کریں گے ان کا لون، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے ذمے جتنی نمازیں باقی تھیں میں اس کا لون ادا کر دیتی ہوں۔ اور یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دادا دادی کا لون ادا ہوا ہوا ہے، جو نمازیں ان کی مس ہوئی ہوں گی، پوچھ سکتے ہیں آپ کسی سے کہ وہ ہیبٹ تھی ان کی نماز پڑھنے کی یا نہیں تھی، کوئی بتاتا نہیں وہ 40 کے بعد سے پڑھنا شروع ہوئے تھے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے، تو پھر آپ نے ان کا حساب لگا کے تھوڑا تھوڑا، اگر پورا نہیں بھی دے سکتے کچھ نمازوں کا تو آپ کا ادا ہو جائے گا نا آپ کی طرف سے، تو یہ بھی ایک فکر ہے، ٹھیک ہے، تو رمضان ایوری رمضان آپ کو رکھنی ہوتی ہے، کسی رمضان دادا کا ادا کر دیا، کسی رمضان دادی کا ادا کر دیا، کسی رمضان نانی کا، کسی رمضان نانا کا، امی ابو پاس اوے ہو گئے تو کبھی امی کا کبھی ابو کا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنی زندگی میں مطلب آپ زندہ ہیں اور آپ کی طبیعت بہت ایسی خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ طبیعت کنڈیشن صحیح ہونے والی ہے ہی نہیں، اس کا فدیہ وہ شخص اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ میری کنڈیشن ایسی ہے ہی نہیں روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا تو سمجھ میں آ گیا نا، اب روزے میں کیا ہے کہ روزہ بھی ایک کیونکہ فرض ہے نا، تو یہ بھی اللہ کو ریٹرن کرنا ہے، یہ بھی لون ہے اللہ کی طرف، اس کی بھی فکر رمضان سے پہلے کرنی ہے کہ اگر ہمارا کوئی روزہ قضا ہے، جیسے ہمارے نارمل پیریڈ میں چھوٹ جاتے ہیں، 7 روزے ہمارے چھوٹ گئے، 8 روزے چھوٹ گئے، آپ کو اپنا سائیکل پتا ہونا چاہیے میرے کتنے روزے رمضان کے چھوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کی بڑی سے اپنا حساب لگا لو، میرے اس سال کے اتنے، اس سال کے اتنے، اس سال کے اتنے، وہ نوٹ بک کے اندر وہ بھی لکھو، ٹھیک ہے، جیسے نماز لکھی ہے ویسے اپنے روزے جو قضا ہوئے وہ بھی لکھو، وہ لکھنے کے بعد اب آپ نے عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر کبھی بھی آپ اس کو پورا کر سکتے ہو، کوئی آپ بنا لو ویک میں 2 دن، بعض لوگ کیسے کرتے ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے روزہ رکھتے ہیں، ایوری منڈے تھرسڈے روزہ رکھتے ہیں، اس میں آپ اپنی قضا روزے کی نیت کر کے آپ اس کو پورا کر لو، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے میں ایسا کرتی تھی کہ رمضان کے بعد کے جو 6 روزے آتے ہیں شوال کے، اس میں قضا کی نیت کر کے وہ پورے کر لیے، پھر اسی طرح ذی الحجہ میں روزے رکھنے کے آتے ہیں شروع کے 9 دن کے، تو آپ نے تھوڑے روزے اس میں کر لیے تو وہ کور اپ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے بھی کور اپ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ہیبٹ ہی نہیں ہے شوال کے روزے رکھنے کی، آپ کو ہیبٹ ہی نہیں ہے ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی، تو پھر آپ کے ذمہ ایٹ لیسٹ وہ فرض روزے تو ہیں، کیونکہ یہ فرض تو نہیں ہے نا ذی الحجہ کے روزے یا پھر شوال کے روزے، تو آپ کیا کرو کہ پھر آپ کو وہ اپنا سائیکل یاد ہونا چاہیے کہ میرے 7 روزے مس ہوئے تھے تو مجھے وہ 7 اگلا رمضان آنے سے پہلے کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ آپ کی پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کبھی بیبی کسی کا بورن ہوتا ہے، وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں 40 ڈیز، تو پھر وہ اپنا حساب رکھیں 30 40 جو بھی ڈیز ان کے اس سائیکل میں گزرے ہیں وہ اپنا پھر اس کو بعد میں پورا کر لیں اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کی نوٹ بک میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، نوٹ بک میں لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ڈائے ہوتے ہیں نا تو کسی کے پاس آپ کا حساب ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں کتنا فدیہ ادا کرنا ہے، کتنے پیسے ادا کرنے ہیں، اول تو اتنا ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کا پینڈنگ کہ کسی کو آپ کی وجہ سے پریشانی ہو، ٹھیک ہے،
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप होते हैं और उस पर टिक मार्क्स हुए हुए हैं कि इतनी तो आपने पढ़ ली थी, इतनी लेफ्ट ओवर है, तो एटलीस्ट किसी को पता होगा ना। अब हमें तो हमारे दादा दादी का नहीं पता चलता उनकी कितनी नमाजें कज़ा हैं, उनके कितने रोजे कज़ा हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कोई कॉपी नहीं बनाई, कोई नोटबुक नहीं बनाई, कुछ लिखा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एक नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है आपकी, वो आपकी पर्सनल नोटबुक होनी चाहिए। और उसके अंदर आपका नमाज का हिसाब, जैसे हम कितनी चीज़ें अपनी रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर ना, अपने सेल फोन में कितनी चीज़ें रखते हैं, कितने फोल्डर्स बना के रखते हैं, अपने कंप्यूटर पे कितने फोल्डर्स बना के रखते हैं, इसी तरीके से ये एक हैंडी नोटबुक आपकी होनी चाहिए। मेरे पास तो है, जब से हमारी टीचर ने हमें बताया था मेरे पास तो है। और बकायदा मैं उसमें लिखती हूँ 2015, 2016, 2017 ऐसे करके पूरा। और अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि भाई ये देखो, ये इस साल का ये हिसाब है, इस साल का ये हिसाब है। तो आप अभी से इसकी हैबिट बनाओ कि आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आपने अपनी नमाज लिखनी है, कज़ा अगर कोई हो गई है और आपकी पीछे की कितनी कज़ा नमाजें हैं, आपने अपने रोज़े लिखने हैं उसके अंदर, क्योंकि ये भी रिटर्न अल्लाह को करने हैं, इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसी तरीके जैसे दादा दादी के रोज़े, नाना नानी के रोज़े, अम्मी अब्बू अगर जिंदा नहीं है, अम्मी अब्बू के रोज़े, ठीक है। अम्मी अब्बू को याद दिलाना है कि आपको अपने अम्मी अब्बू की फिक्र करनी है, ठीक है। कि अगर कोई बड़े बहन भाई हैं जिनसे आपको बहुत बहुत मोहब्बत थी या नहीं भी थी, और आपको अल्लाह ने इतनी गुंजाइश दी कि आप उनके नाम पे कोई सदका खैरात करके उनके रोजे या उनके नमाजों का अदा करवा सकते हैं, तो आप बेशक वो भी कीजिए। तो इसमें आपको भी रिवॉर्ड है, उनके लिए भी जहन्नुम से बचत है। तो ये सारी चीज़ों की फ़िक्र रमज़ान से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके पहले से करनी होती है, ठीक है? नमाज की फ़िक्र हो गई, रोज़ों की फ़िक्र हो गई, रोज़ों के बाद ज़कात की फ़िक्र, ठीक है? ज़कात हर साल हर इंसान के ऊपर जो उसकी सेविंग है उस पे 2.5% उसको ज़कात में अदा करना ही करना होता है, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी लेट्स सपोज़ 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है? और आपने उसको सेव किया हुआ है 1 ईयर से, ठीक है? 1 साल से उसको आपने सेव किया, तो 1 साल जब कोई चीज़ आपके पास सेव होती है, चाहे वो आपकी गोल्ड हो, सिल्वर हो यानी ज्वेलरी हो, या फिर आपके पास वो पैसे हों, या फिर आपने कोई घर लेकर उसको रेंट आउट किया हुआ है तो उसका जो रेंट आता है वो हो, या और कोई मीन्स जो भी, तो आपने उसको बैठकर रमज़ान आने से पहले कैलकुलेट करना है कि मेरे पास टोटल सेविंग इतनी है, मेरा जो गोल्ड है उसका ग्रामेज इतना बनता है। वो कहीं भी ज्वेलर से एक दफ़ा चेक करवा लें, और चेक करवा के उसको फिर आप अपने पास नोट करके कहीं अपनी उसी नोटबुक पे लिख लें कि मेरे पास इतना ग्रामेज है, 200 है, 100 है, जो भी। अब उसका जो करंट रेट चलता है मार्केट में, अगर लेट सपोज 1 ग्राम 100 रुपीज़ का है, तो आपने अपने आपके पास कितने ग्राम गोल्ड है या सिल्वर है, आपने उसका पूरा कैलकुलेट करना है। ये एवरी ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा जितने का था आप सोच रहे हैं अच्छा उतने पैसे मुझे ज़कात में हर साल देने, नहीं, जो उसका करंट रेट है उस हिसाब से उसका 2.5% आपके पास जो भी सेविंग है वो अगर ईयर से है, चाहे वो 1000 रुपीज़ ही क्यों ना हो, 100 रुपीज़ पे 2.5 रुपीज़, ठीक है। अगर आपके पास $100 है तो 2.5 डॉलर, अगर 100 रुपीज़ से हम रखें तो 2.5 बहुत छोटी सी अमाउंट है। 100 रुपीज़ में से सिर्फ 2.5 रुपीज़, ₹2.5, तो ये आपने ज़कात देनी होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखें कि 100 के ऊपर 2.5, ठीक है, 100 पे 2.5, तो आप अपने कैलकुलेट कर लें आपके पास टोटल सेविंग कितनी है। और हर इंसान अपनी फ़िक्र खुद रखे। मैं ये ज्वेलरी यूज़ करती हूँ गोल्ड की, मेरे पास ये लॉकेट है 52 तोले से ज़्यादा है, तो फिर आपको 52 नहीं 7 कुछ है उसका हिसाब। तो अब उसमें एक छोटी सी रिंग भी आ जाती है जो अगर आप वेयर करते हैं और गोल्ड की है, या फिर छोटा सा लॉकेट भी, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इतनी बारीकी में जाने की बजाय आप बस उसको कैलकुलेट करके और अपनी ज़कात को इंशाल्लाह अदा कर दें। अपने पेरेंट्स से भी पूछिए आप ज़कात अदा करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं जो इंसान ज़कात अदा नहीं करता है, ठीक है, उसने गोल्ड घर में खरीद के रखा हुआ है या फिर उसने कॉइन्स खरीद के रखे हुए हैं, बस उस सेविंग के तौर पे सोच के खरीद के रखा हुआ है, हर वो चीज़ जो आपकी सेविंग के तौर पे आपने खरीद के रखी है उसका ज़कात लाजमी जाएगा। अब अगर आप उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उस शख्स के गले में उस पूरा जो उसका सेविंग था ना, उसको एक एनाकोंडा यानी अजदहा यानी स्नेक बना देंगे बहुत बड़ा वाला, और आपके गले में लटका देंगे, और वो आपको बाइट करता रहेगा आपके मुंह के ऊपर। और आप पूछेंगे उससे कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम मुझे क्यों बाइट कर रहे हो, और वो सांप आपको क्या कहेगा, मैं सांप नहीं हूँ,
मैं तो तुम्हारा वो सारा माल हूँ, वो पैसा हूँ, वो सेविंग हूँ जो तुम जमा करते रहे, मगर उससे ज़कात तुम नहीं देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज पनिश के तौर पे तुम्हारे उसी सारे सेविंग को स्नेक की शक्ल बना के और गले के अंदर तुम्हारे लटका दिया। अब मेरी जॉब ये है कि मैं तुम्हें काटता रहूँ, काटता रहूँ, काटता रहूँ। तो इससे बहुत फिक्र करनी है। एक नमाज अगर इंसान कज़ा करता है तो एक सांप अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत कब्र के अंदर ऐसा दे देता है जो आपको बाइट करेगा। लेट्स सपोज आपने फजर की नमाज कज़ा की तो आपको बाइट करता है, उसकी बाइट इतनी डेंजरस होती है कि आप 7 ज़मीन नीचे चले जाते तकलीफ से, और वो आपको बाइट करता रहता है उस वक्त तक जब तक ज़ोहर का टाइम नहीं आ जाता। फिर जब ज़ोहर की नमाज अगर आपने और मज़ीद वो भी कज़ा कर दी थी तो वो आपको बाइट करता है अनलेस आपकी असर की नमाज अगर आपने पढ़ ली तो वो छोड़ देता है, नहीं पढ़ी तो वो आपको स्टिल बाइट करता रहता है। तो ये जो पनिशमेंट्स हैं ये अलग, और फिर दूसरी किस्म की जो पनिशमेंट्स हैं वो अलग। तो हमें सिर्फ हमारी फिक्र नहीं करनी, हमें अपने पेरेंट्स की भी फिक्र करनी है, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी फिक्र करनी है, उनको रिमाइंडर्स देते रहना है नमाज पढ़ने का, क्योंकि इतनी इजी चीज़ नहीं है। जहन्नुम में भी जा रहे हैं, ग्रेव में भी उसका जो आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। पैसा है तो लाइफ में एक दफ़ा हज की फिक्र करना, ठीक है। एक हज हर इंसान पे फ़र्ज है, लोन है अल्लाह की तरफ से कि अगर आपके पास पैसा है। अब हर एक को पता है कि हज तो इतना महंगा है, किसी के पास इतने लाखों के पैसे होते ही नहीं हैं, 6 लाख 10 लाख 15 लाख के भाई आप जो है वो हज करें, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि एक अलग से आपके पास सेविंग बॉक्स होना चाहिए जिसमें हर ईयर रमज़ान में आप चेक करें कि भाई पिछले साल मैंने इतना सेव किया था हज पे जाने के लिए, चाहे वो आपके 100 रुपीज़ ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपके 50 रुपीज़ ही क्यों ना हो। आपकी नीयत होनी चाहिए कि क्या अल्लाह मैं हज पे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपके पास वो बॉक्स होना चाहिए। एक आता है मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बारे में, तो उनकी बेटी आई उनके पास और उन्होंने आके कहा मुझे हज पे जाने का बहुत बहुत दिल करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ भी किया, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो जा ही नहीं पाती क्योंकि इतना महंगा है हज। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें इतनी ख्वाहिश है हज पे जाने की और तुम्हें ये भी फिक्र है कि ये फ़र्ज़ है और मुझे अदा करना है, तो तुम इसके लिए क्या प्रिपरेशन करती हो? तो उनके अब्बू को उन्होंने जवाब दिया कि प्रिपरेशन क्या करनी है, उसमें पैसे होंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि देखो पैसे होने से थोड़ी चली जाओगी, अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है कि तुम हज करो और तुम इसकी फिक्र करती हो कि ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके लिए पैसे जमा करो। जब तुम उसके लिए पैसे जमा ही नहीं कर रही तो अल्लाह के सामने जाके कैसे कहोगी कि मुझे हज करना था। चाहे 2 रुपए ही जमा करो लेकिन जमा तो करो। एक अलग से बॉक्स बनाओ जिसमें तुम्हारी हज की मनी जमा हो रही हो, ठीक है। अच्छा, उनको अपने वो अपने 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 अब्बू की बात इतनी ज़्यादा दिल में लगी कि उन्होंने जाकर एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में उन्होंने हज के पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अच्छा, उन्होंने जब हज के पैसे जमा करने शुरू कर दिए तो बीच में उनकी डेथ हो गई और वो डाई हो गई। अच्छा, डाई हो गई तो जब उनकी डेथ के बाद उनका सारा सामान वामान चेक किया डोनेशन में डालने के लिए तो एक निकला उनका लिफाफा बॉक्स जो भी, उसके अंदर जब खोला तो लिखा था दिस इज़ माय हज मनी, ये मेरे हज के पैसे हैं। तो फिर उनके अब्बू ने कहा कि ये इतने पैसे तो नहीं है कि कोई पाकिस्तान से जाए और जाकर हज अदा करके आए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो पैसे किसी ऐसे शख्स को दे दिए जो ऑलरेडी सऊदीया में रहता था और जो वहीं का रहने वाला था, जिसको ना टिकट के पैसे लगाने थे ना होटल के पैसे लगाने थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के नाम का हज तुम अदा कर दो क्योंकि इतने पैसों में एक मुकामी आदमी, एक लोकल आदमी ही हज कर सकता है जो वहीं पे रहता हो। तो जब उन्होंने उसको हज बदल मतलब हज करवा दिया तो वो हज बदल में आ गया ना। अल्लाह ने देखिए उनकी नीयत कबूल कर ली क्योंकि उन्होंने जमा किया था थोड़ा बहुत, और उस थोड़े बहुत का कम से कम वो अल्लाह के सामने खड़े होकर कह सकती मेरे पास कुछ सेविंग मैं कर रही थी लाइफ में अपने हज पे जाने के लिए। लेकिन अब हम सोचे, हमेशा ये सोच लें कि हज तो बहुत महंगा होता है तो हम कैसे करें, हम तो जा ही नहीं सकते कभी हज पे, फर्ज अगर अल्लाह ने किया है तो फिर अल्लाह फिर सवाल ये होता है कि हम उसकी सेविंग कितनी कर रहे हैं, हम हम उसकी फिक्र कितनी करते हैं। हमें कहीं से इधर से उधर से कोई पॉकेट मनी मिलती है तो क्या हम हज के नाम पे उसको साइड में सेव करते हैं या बस हम उसको खा पी के ख़त्म कर लेते हैं। तो ये फिक्र भी बहुत बचपन से आपको अपने अंदर डालनी है। तो मेरे पास एक हज का बॉक्स होना चाहिए, एवरी रमज़ान में चेक करूँ कि लास्ट ईयर इसमें 100 थे तो अब नेक्स्ट ईयर में 200 तो होने चाहिए, नेक्स्ट उसके बाद 250 तो होने चाहिए, कुछ तो बड़े ज़्यादा होने चाहिए, 2 से 300 ना भी हों तो कम से कम 250 हो, 225 हो, मगर बढ़ते तो चाहिए ना।
मैं कम अज़ कम अल्लाह के पास जाके ये तो बताऊं कि अल्लाह मैं जमा कर रही थी, हो नहीं सके इतने पैसे, हज महंगा था, मगर मैं जमा कर रही थी। तो ये सारी फिक्र भी रमज़ान से इंशाल्लाह पहले करने की है। और जब अगर आपका लगे कि मेरा मेरा हज अदा हो गया, मैंने हज, क्योंकि हज एक दफ़ा ही फ़र्ज़ है ज़िंदगी में, ठीक है? तो अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश है कि उसको लगता है कि वो हज करके आ गया, ठीक है? तो अब उसको किस चीज़ की फ़िक्र करनी है? अपनी कज़ा नमाज़, अपने रोज़े। अगर अपनी कज़ा नमाज़, अपने रोज़े की वो तो क्योंकि वो पढ़ के अदा कर सकता है ना, लेकिन वो क्या करे, एवरी डे थोड़ा सा सबका अपने पेरेंट्स के लिए मालूम कर ले कि क्या चल रहा है, और फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए अभी, क्योंकि एक साथ पैसे निकालना तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को अचानक से पता चले कि मेरी तो दादी की नमाजें 10 साल की कज़ा थी, तो अब 10 साल की तो टोटल बनता है, वो तो आपको बहुत मुश्किल है निकालना। तो आप सोचो चलो मैं एवरी डे कुछ थोड़ा सा उनके नाम पे निकाल दूंगी, एवरी डे का आपने मालूम कर लिया, दादा का मालूम कर लिया, एवरी वीक का मालूम कर लिया, एवरी मंथ का मालूम कर लिया, कुछ भी थोड़ा थोड़ा हम अपने पेरेंट्स के लिए निकालते रहें, ताकि उनकी भी पकड़ हमारे साथ साथ ना हो, हम अपनी अदा करते रहें, क्योंकि हम तो अभी जिंदा हैं, हमें तो अपनी पढ़ के अदा करनी है, हम अपनी अदा करते रहें और उनकी इस तरीके से निकालते रहें, ठीक है? और पूरी पूरी कोशिश इस रमज़ान में इरादा करके हम ये बनाएं कि हम अपनी कोई नमाज कज़ा नहीं होने देंगे, अपना कोई रोज़ा अगले रोज़े से पहले जो है वो पेंडिंग नहीं रखेंगे कि एक रमज़ान के बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया और हमारे पीछे के इतने सारे रोज़े कज़ा है, ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ठीक है? आप लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हो कि कोई आपको ये बात समझा रहा है। अब एक्ट करना, उस पे अमल करना, ये आपके ज़िम्मे है कि हाँ, मुझे इसको लाइफ में अपने ऐड करना है, क्योंकि बहुत से लोग, मैं जब पढ़ा रही होती हूँ या मेरा खुद अपना भी एक्सपीरियंस है कि हम लोग कभी बैठते हैं तो यही बात करते हैं, पेरेंट्स ने इतनी फिक्र ही नहीं की, पेरेंट्स ने ये समझाया ही नहीं, पेरेंट्स ने ये बताया ही नहीं था, हम भी उसको इस तरह से संभाल लेते। तो आपके पास अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि आपको किसी ने बताया नहीं था, ठीक है? अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। तो अब इस रमज़ान में बैठ के एक नोटबुक अपनी ऐसी बनानी है जिसके अंदर आपने ये सब चीज़ें अपनी नोट करनी है। अगर दादी के आप अदा करते हैं, दादा के आप अदा करते हैं, तो आप अपने दूसरे सिबलिंग्स को कह सकते हैं कि भाई मैं दादी का कर देती हूँ, तुम दादा का कर दो, फलां उसका कर दे, फलां उसका कर दे। हमें फिक्र करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, शऊर नहीं होने से काम नहीं हो रहे होते, नॉलेज नहीं होने से काम नहीं हो रहे होते, घर वालों को पता नहीं होता, इस वजह से काम नहीं हो रहे होते। तो आप उनमें से बन जाओ कि जो किसी को नॉलेज दे दो इस चीज़ की कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, हमें इनकी भी फिक्र करनी है, ठीक है? अकल जो होती है ना, नॉलेज जो होती है, वो दो टाइप की होती है। एक वो जो इंसान दुनिया की फिक्र करता है, मेरी स्टडीज, मेरी पढ़ाई, मेरा घर, मेरा सोशल सर्कल, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़। एक नॉलेज वो होती है जिसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज कहते हैं, जो आपकी आंखें बंद होने के बाद, जो डाई होने के बाद आपकी लाइफ है, जो ग्रेव में होगी, जो जो कब्र के बाद हशर में होगी, जिसमें अल्लाह फैसला करेंगे जन्नत में जा रहे हैं जहन्नम में, एक वो जिंदगी भी है। तो अकल ना दो तरीके की होती है। एक जो होती है वो दुनिया की फिक्र करने वाली अकल होती है, जिसको अकल, यानी अकल सलीम जिसे कहते हैं ना, कि अल्लाह किसी को बहुत अच्छी हिकमत वाली अकल दे दे। तो एक जो है अकल मियाद होती है, और एक अक्ल माश होती है, ठीक है? अक्ल माश किसे कहते हैं अरबिक में, कि जो दुनिया की फिक्र करता है, दुनिया की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखता है और हर चीज़ में एक्यूरेसी रखने की कोशिश करता है। और अक्ल मियात वो होती है कि आपकी फिक्र इतनी बढ़ जाए अपनी ग्रेफ को और अपनी आखिरत को लेके, कि आप उसकी भी फिक्र करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए उसकी भी फिक्र करना शुरू कर दें। तो क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ दफ़ा सिर्फ कोई ये सब बातें कर नहीं रहा होता, समझा नहीं रहा होता, इस वजह से हम बहुत दूर होते हैं अपनी प्रैक्टिकल और ये वाली जो अक्लमियात वाली लाइफ है ना, इससे बहुत दूर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि हम पूरे 11 मंथ में सब कुछ भूल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कितना इंतज़ाम करते हैं कि रमज़ान आने से पहले हर चीज़ की एक रिविज़न हमको करवा देते हैं, ठीक है? तो इस दुआ को पढ़ने का मकसद क्या है? इस दुआ को पढ़ने का मकसद है अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमदाना, ओ अल्लाह मुझे जब रमज़ान में दाखिल करना, जब रमज़ान की पहली रात हमें दिखाना, तो ऐसे सलामती के साथ दाखिल करना है कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इन सब की फ़िक्र हमारे ज़हन में हो, इन सब का ख़्याल हमारे ज़हन में हो, और तब हम हर चीज़ की माफ़ी के साथ इस रमज़ान की पहली रात को दाखिल हो। वसल्लिम रमदाननी, और फिर रमज़ान जब हम दाखिल हो जाए ना पहली रात को, तो फिर या अल्लाह हमें ज़िंदा भी रखना,
वसल्लिम रमदान अली का मतलब है कि या अल्लाह हमें भी सलामत रखना उस रमज़ान के लिए, कि फिर अब पीछे के तो हमने फिक्र करके रमज़ान में आ गए हम, मगर अब रमज़ान को कैसे गुजारना है, रमज़ान किस तरीके से हमारे लिए सलामती वाला बने, अमन वाला बने, पीसफुल हो, उसकी भी हमें फ़िक्र देना है। ऐसा नहीं कि हम रमज़ान में जाके बिल्कुल शैतान ने हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया और हम भूल गए हमें अपना रमज़ान कैसे गुजारना था। वो सल्लिम रमज़ान अली, अल्लाह रमज़ान को भी मेरे लिए सेफ गार्ड ऐसा कर दे कि मुझे पता हो कि हाँ मुझे बहुत अलर्ट रहना है रमज़ान में। वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, ओ अल्लाह अब ये जितनी फिक्र मैंने की अपनी कज़ा नमाज़ें, अपने कज़ा रोज़े, अपने अपने हज की, अपने ज़कात की, अपने पेरेंट्स की हज ज़कात रोज़े नमाज की, अपने दादा दादी के, तो ये अल्लाह इस सब की फ़िक्र के साथ मैंने रमज़ान में दाखिल हुई। अब मेरे रमज़ान को आप संभालिए और फिर ये सारी चीज़ें जिनकी मैंने फ़िक्र की इनको आप कबूल भी कर लीजिए। वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, या अल्लाह क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्योंकि लेट किया है ना ये काम, कज़ा तो कज़ा ही है ना, तो अब मुझे थोड़ी पता आपने मुझे माफ़ किया या इसको कबूल किया या नहीं किया, तो या अल्लाह आप इस सारी चीज़ों को मुझसे कबूल फरमा लीजिए। कि जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रिजेक्शन हो नहीं सकता, इवन दो वो कज़ा है मेरे पेरेंट्स की कज़ा या दादा दादी की या मेरी अपनी, है तो फॉल्ट ही ना, लेकिन फिर अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इस दुआ की बरकत से फिर उसको हमारे लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा बना देंगे। और ये ऐसा रिमाइंडर है कि ये हर साल रमज़ान से पहले बैठ के सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ना भूल जाता है। मैं खुद जब आपको पढ़ा रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद पूरे 11 मंथ से सब कुछ भूली हुई हूँ और आपको पढ़ाते पढ़ाते अब मेरा अपना रिमाइंडर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने हर साल इसको बैठना है, हर साल इन दुआओं को दोबारा से पढ़ते वक्त इन सारी बातों को याद करना है, रिवाइज करना है, बार बार दूसरे के सामने उनको भी बताना है, ताकि उनको भी ये रमज़ान किस लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजते हैं इसकी अहमियत का पता चले। उसको बर्डन नहीं समझें कि ओ अब सहरी में उठना है, अफ्तारी करना है, स्कूल भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, और ये भी वो भी नहीं। रमज़ान क्यों आ रहा है, रमज़ान के आने की रीज़न अल्लाह ने 11 मंथ के बाद क्यों रखी है, उसमें क्या क्या रिविजन हमको चाहिए है, क्या क्या हमारी चीज़ें जो गफलत में हैं जिनको ठीक करना है, ये सारा का सारा स्केड्यूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस दुआ के ज़रिए और इस रमज़ान के ज़रिए समझाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा ये वाली दुआएं रिवाइज कर लेते हैं। रब्बिग़फिर वरहम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व अंत खैरुर राहिमीन। ओके, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन min kulli dhanbin व अतूबु इलैहि। wa atubu ilayhi। अल्लाहुम्मा इन्नका Allahumma innaka अफ़ुव्वुन afuwwun तुहिब्बुल अफ़्व tuhibbul afwa फ़अफ़ु अन्ना fa'fu anna या करीम। ya karim। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हम एक मैंने वो भी खोल के रखा था हदीस, जो हम इंशाल्लाह आज एक रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको जो हदीस है ना वो वाली बताती हूँ जो रमज़ान की पहली रात की है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन सी नंबर की हदीस है।
लास्ट टाइम भी आपने ये हदीस पढ़ाई थी रमजान में। रमजान का 9 करवा दिए थे आपने। चलो हम इसको स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है कि कौन सी हदीस का नंबर है वो। तो इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन थोड़ा सा बिग कर लेते हैं ताकि अपने को नज़र आए सही से। ओके, ये है हदीस नंबर 1, ठीक है। सलमान रदियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट्स, on the last day of Shaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed us and said, "O people, there comes over you now a great month." Hazrat Salman radiallahu anh जो है ना, सलमान फारसी वो radiallahu anh जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, दोस्त थे, सहाबा थे, ठीक है। on the last day of शाबान, हम अभी शाबान में है ना, शाबान के बाद रमजान आता है, अभी जो महीना चल रहा है वो शाबान है। तो शाबान की जो आखिरी रात थी, आखिरी दिन था, उस दिन उन्होंने खड़े होकर लोगों से कहा, ओ पीपल, ओ लोगो, देयर कम्स ओवर यू नाउ अ ग्रेट मंथ, अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अजीम महीना आने वाला है। द मोस्ट ब्लेस्ड मंथ इन विच lies a night more greater in riches than 1,000 months, इसकी रातें इतनी ज्यादा सवाब वाली हैं कि आम दिनों से 1000 नाइट्स ज्यादा सवाब मिलता है इसमें इबादत करने का। इट इज अ मंथ इन विच अल्लाह हैज मेड फास्टिंग कंपल्सरी बाय डे, अल्लाह ने इस रमजान के महीने में दिन में रोजे को रखना फर्ज कर दिया है, ठीक है। एंड हैज मेड सुन्ना द तरावी, तरावी पढ़ने को सुन्नत बताया है बाय नाइट, रात के वक्त में, ठीक है। Whoever intend drawing near to Allah by performing any righteous deed, अगर कोई इंसान रमजान के दिनों में कोई भी अच्छा काम करेगा, for such person shall be reward, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर अजीम अता करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, उसको इनाम देंगे, like the one who had performed a furz in any other time, जैसे हम फर्ज नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रिवॉर्ड देते हैं, खुश होते हैं, वैसे ही रमज़ान में एक एक अच्छा काम करना। और रमज़ान का जो, रमज़ान में कोई भी अच्छा काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अच्छा काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि नमाज और कुरान पढ़ना ही हो, जिक्र करना ही हो, बहुत से, किसी को हेल्प करना, किसी के काम आना, किसी से अच्छी बात करना, किसी की हेल्प कर देना, बहुत सी चीज़ें आती है इसके अंदर, हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर बहुत बढ़ा कर देते हैं रमज़ान में। And whoever perform a फर्ज, और अगर कोई फर्ज अदा करता है, shall be blessed with the reward of 70 फर्ज in any other time। तो ये जो 11 months में हम नमाज पढ़ते हैं ना, इसका लेट सपोज अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक नमाज पढ़ने के एक अजर देते हैं, तो रमजान में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज पे 70 टाइम ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, एक नमाज पढ़ने से। जब आप जोहर पढ़ते हैं, रमजान की जोहर 70 गुना ज्यादा सवाब, रमजान की असर 70 टाइम ज्यादा आपको रिवॉर्ड देती है, ठीक है। ये जहन में रखना है कि रमजान में हर नमाज का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 से मल्टीप्लाई करके देते हैं, क्योंकि रमजान है, ठीक है, इतना स्पेशल होता है रमजान। दिस इज इंडीड द मंथ ऑफ पेशेंस, सबसे पहले तो सब्र होना चाहिए इस महीने में, ठीक है। जाहिर है आप रोजा रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आम दिनों से हटके एक तरीका, लाइफ स्टाइल है, तो दफा क्या होता है, आप बहुत फ्रेंकली हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर एक को बोल रहे थे मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। रमजान आया ही इसीलिए आपको पेशेंस सिखाने के लिए, तो आप रोजा अपने लिए रख रहे हो ना, किसी और को दिखाने के लिए तो नहीं रख रहे। तो अगर कोई सख्ती है, कोई परेशानी है, तो आपने उसके ऊपर सब्र करना है। द रिवॉर्ड फॉर ट्रू पेशेंस इज जन्नत, और अल्लाह कह रहे हैं कि जो सब्र करता है मैं उसको जन्नत में जरूर भेजूंगा। दिस इज द मंथ ऑफ सिंपैथी विद वंस फेलो मैन, और हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि भाई सिर्फ अपनी नमाज, रोजे, नमाज, कज़ा, ये वो नहीं, सिर्फ अम्मी अब्बू के भी, दादा दादी के, नाना नानी के, बड़े ताया ताई, फुप्पा फुप्पी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, क्लोज बहन भाई हैं, सबकी फिक्र करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी फिक्र करना है। तो दो चीजें रमजान में हमें सिखाई जा रही हैं, एक तो सब्र और दूसरा सबकी फिक्र करना, ठीक है। It is the month wherein a true believer risk is increased। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान में मुसलमान का रिस्क इतना बढ़ा देते हैं, और ये तो हमने देखा ही है ना, कितनी दफा ऐसा होता है खाना बच जाता है, फ्रिज में रख रहे हैं, दावत आ गई,
किसी के पास से अफ्तारी आ गई, कितना खाना हो जाता है, कितना खाना हो जाता है रमजान के दिनों में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना रिस्क बढ़ा देते हैं इंसान का कि वो सोच भी नहीं सकता। whoever feed another who fasted, और अगर कोई किसी को अफ्तारी करवाता है, किसी को अफ्तार भेजता है, किसी का रोजा खुलवाता है, in order to break the fast at sunset, जब जब सूरज गुरूब होने का टाइम है, सनसेट का टाइम है, और अगर आप किसी को अफ्तारी कराते हैं, for the feeder there shall be forgiveness of the sin and emancipation from the fire of Jahannam। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं किसी को अफ्तारी करवाना या उसके पास अफ्तारी भेजना, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, और अगर आपने वो खजूर किसी को भेज दिया जिसकी वजह से किसी ने अपना रोजा अफ्तार कर लिया, तो ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में आपके गुनाह माफ करता है, किसी को अफ्तारी खिलाने के बदले में ना सिर्फ अल्लाह आपके गुनाह माफ करता है, बल्कि आपको जहन्नम की आग से भी महफूज रखता है। तो कितना अच्छा टाइम, हम सारा साल नमाज और कुरान पढ़ के अपने आप को जहन्नम की आग से ही तो सेव करने की कोशिश करें ना। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कि तुम किसी को अफ्तारी करवा दो और मैं तुम्हें जहन्नम की आग से ऐसे ही आज़ाद कर दूंगा, ठीक है। एंड फॉर सच फीडर शैल बी द सेम रिवॉर्ड एज वन हु फास्टेड। एक तो अल्लाह ने कहा मैं गुनाह माफ करूंगा, दूसरा अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाऊंगा, तीसरा अल्लाह ने कहा कि जिस बंदे ने रोजा रखा था उसने पूरा दिन में जो जो नेक काम किए थे उसका जो भी सवाब उसको मिलना था वो पूरा बराबर का सवाब मैं तुम्हें भी दे दूंगा, क्योंकि तुमने उसको अफ्तार करवाया। कितनी बड़ी रिवॉर्ड है। आप जो अपना रोजा रख रहे हो उसका तो मिल ही रहा है आपको सवाब, और आपने किसी को अफ्तारी करा दी, उसने जो पूरा दिन में नेक काम किए हैं उसका भी रिवॉर्ड आपको मिल गया। इससे क्या पता चला कि जो पाइस पीपल होते हैं, जो नेक परहेजगार नमाजी टाइप के लोग होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा अफ्तारी का उनके तमाम करना चाहिए, क्योंकि वो तो ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, ज्यादा नमाज आप फिक्र कर रहे हैं, ज्यादा इबादत कर रहे हैं, तो उनका जो भी रिवॉर्ड है आपको कितना सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये भी एक फिक्र रखनी है। विदाउट दैट पर्सन रिवॉर्डिंग दी, और ऐसा नहीं है कि आपने उसको अफ्तारी कराई तो उसका पूरा रिवॉर्ड आपको मिल गया और अब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका जो भी नेकी का पूरा दिन उसने गुजारा और अच्छे काम किए उसका पूरा रिवॉर्ड आपको भी मिलेगा। कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्लेसिंग रखी है रमजान में। Thereupon we said, O Messenger of Allah, not all of us possess the mean whereby we can give a fasting person to break his fast. Rasulullah replied, Allah grant the same reward to the one who gives fasting person to break the fast, a mere date or a drink of water or sip of milk. Actually हुआ क्या, नबी वसल्लम के ज़माने में तो सहाबा इकराम के पास इतने पैसे होते नहीं थे और रिवॉर्ड उनको बहुत सारा चाहिए था। तो उन्होंने परेशान होकर नबी वसल्लम से पूछा कि नबी वसल्लम हमारे पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को बुला बुला के अफ्तारियाँ करवाएं और हर रोज़ का रिवॉर्ड लें, तो अब हम क्या करें। हमें हमें लेकिन सवाब भी चाहिए, हम सवाब भी कमाना चाह रहे हैं, तो आप कोई हमें कोई शॉर्टकट बताएं क्या करें हम। तो नबी वसल्लम ने कहा ज़रूरी थोड़ी है बड़ा बड़ा दस्तरखान बिछा के और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी अफ्तारी कराओगे तो सवाब मिलेगा। किसी को एक गिलास पानी पिला दो उसका भी तुम्हें सवाब मिल जाएगा, किसी को एक घूंट दूध पिला दो उसका भी सवाब मिलेगा, किसी को एक खजूर खिला के उसका रोजा तोड़वा के उसका रोजा अफ्तार करवा दो, उसका भी अल्लाह उतना ही अजर देंगे जितना अल्लाह बयान कर रहे हैं। तो जरूरी यहाँ से क्या पता चलता है, ये जरूरी नहीं है कि हर रोज लोगों को बुला के बड़े बड़े दस्तरखान पे बहुत सारा एहतमाम करके ही किसी को खिलाना है। आप किसी के घर में खजूर भिजवा दें, रमजान से पहले पूरा खजूर का पैकेट ही भिजवा देंगे भाई हमारी तरफ से तोहफा है। अब वो जब अफ्तारी के टाइम में खजूर से रोजा खोलेंगे, घर में अगर 6 लोग भी हैं तो सोचो आपको उन 6 लोगों का रिवॉर्ड आपको भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसा करते हैं, रमजान से पहले गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट के अंदर खजूर के बॉक्सेस और रूह अफ़ज़ा की बॉटल, थोड़ी सी सेवइयाँ, थोड़े से कुछ इस तरह के स्नैक जो रमजान में इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना अच्छे से पैक करके और भिजवा देते हैं। तो पहले मैं सोचती थी कि क्यों भिजवाते हैं ये रमज़ान से पहले लोग इस तरह गिफ्ट्स क्यों देते हैं, रूह अफ़ज़ा की बॉटल और फिर साथ में खजूर का एक बॉक्स अच्छे से पैक करके रमज़ान मुबारक लिख के और भिजा दिया। फिर ये हदीस पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसलिए भिजा देते हैं कि भाई अब अफ्तार रोज रोज बुला के कराना तो आसान काम नहीं है। तो ये कितना आसान है कि वो जब अपने घर में खजूर ढोएंगे और रूह अफ़ज़ा से शरबत बनाएंगे या टैंक से शरबत बनाएंगे, तो उनके घर में जितने लोग उस टाइम दस्तरखान पे बैठे वो सब पियेंगे ना उसको। जब वो सब पियेंगे तो उसका सारा सवाब आपके हिस्से में जाएगा जाएगा ना, बिल्कुल। तो कितना अच्छा ये तरीका है कि आप रमजान अभी आने में टाइम है, रमजान बॉक्सेस बनाइए
उसमें एक जूस या एक टैंग या जो भी आप उसके अंदर वो रखें, साथ में खजूर का एक बॉक्स रख दीजिए, उसको अच्छे से रिबन लगा के पैक कीजिए और कहें फिर रमज़ान का तोहफा है हमारी तरफ से। अब आपकी चीज़ उनके घर पे चली गई, सेवइयाँ हैं, खजला फेनी है, जो भी मतलब ब्रेकफास्ट सहरी में खाने की कोई चीज़, अफ्तारी में खाने की कोई चीज़, जो आपको अगर ऐसा है कुछ आप अपने अपने रिलेटिव्स में बांट दें, अपने नेबर्स में जो आपके क्लोज नेबर्स हैं उनमें बांट दें, तो आपको क्या होगा उससे कि आपका जब वो इस्तेमाल करेंगे रमज़ान में तो उसका पूरा पूरा रिवॉर्ड इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी देंगे। हालांकि आपने उनको घर बुलाया नहीं, अफ्तारियाँ बड़ी बड़ी अरेंज नहीं की उनके लिए, लेकिन आपको इसका सवाब मिलेगा। ठीक है, दिस इज द मंथ द फर्स्ट of which bring Allah mercy, in the middle of which brings His forgiveness, and the last which bring emancipation from the fire of Jahannam। ये हम कल लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हम पहली दुआ रब्बिग़फिर व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह की मर्सी अपनी तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की रहमत को आवाज़ लगाते हैं इस दुआ को पढ़ के। मिडिल में हम फॉरगिवनेस की दुआ पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। लास्ट में हम जहन्नम से बचने की दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ठीक है, तो ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। इसके अलावा whoever listen the burden of his servant in this month, Allah will forgive him and free him from the fire of Jahannam। एक और चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि अगर किसी घर में कोई मेड आती है, मासी आती है, काम करने वाला कोई है, तो आप उसके ऊपर रमज़ान में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालें कि रमज़ान है तो तुम मेरा ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो, थोड़ा सा ये भी कर दो, थोड़ा सा ये भी कर दो, बल्कि क्या लिखा है कि आप उसका बर्डन कम कर दें। कम करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जहन्नम से आज़ाद करेंगे, ना कि आप रमज़ान में उसको और ज़्यादा काम थमा दें कि भाई मेरा तो रोज़ा, मेरा ये काम तुम करते हो। तो अपने अंडर में जो काम करने वाले हैं, जो नौकर हैं, जो मासियाँ हैं, उनसे कम काम लेना है रमज़ान में, और उनसे कहना है कि नहीं भाई रमज़ान है, तुम थोड़ा कम ही काम करो ताकि हमारी पकड़ ना हो जाए। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौक़ूफ़ रखे। ये भी चीज़ याद रखनी है। एंड इन दिस मंथ 4 things we should continue to perform in great number, to which shall be to please your Lord, while the other 2 shall be those without and which you cannot. Those which shall be pleased to your Lord are that you should in great quantity bear witness that there is no deity to worship Allah subhanahu wa ta'ala, recite the kalima tayyibah la ilaha illallah, and make such istighfar, beg Allah forgiveness and astaghfirullah. And as for those without which you cannot do, you should beg of Allah entrance into paradise and ask refuge in him from Jahannam। क्या समझ में आ रहा है? 2 चीजें अल्लाह को बहुत पसंद है, एक तो जन्नत मांगना अल्लाह से, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत बहुत ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, दूसरा अल्लाह को क्या पसंद है? इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांगना और अल्लाह से बार बार दुआ करना कि अल्लाह मुझे जहन्नम से दूर रखना। तो रमज़ान में ये 4 काम अल्लाह को करना बहुत पसंद है, कलमा पढ़ना और जन्नत की दुआ मांगना और इस्तग़फ़ार पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग के जहन्नम से बचने की दुआ करना। हर वक्त यही दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ओ अल्लाह मुझे जन्नत में ज़रूर भेजना और मुझे आग से जहन्नम से बचा के रखना। ठीक है, उर्दू में भी मांग सकते हैं, अरबी में भी मांग सकते हैं, इंग्लिश में भी मांग सकते हैं, मगर शॉर्टकट ये है कि इस्तग़फ़ार पढ़ना और जहन्नम से बचने की दुआ करना, कलमा पढ़ना और जन्नत की दुआ मांगना। ये 4 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रमज़ान में करना बहुत पसंद है। तो क्या है कि स्टिकी नोट बना के इसको कहीं लगा ले अपने दीवार पे, ताकि आपको याद रहे रमज़ान आने पे कि ये जॉब्स हैं जो मुझे रमज़ान में करने ही करने। एंड whoever give a person who fast water to drink, Allah grant that giver to drink from my fountain, such as drink thereafter that person shall never again feel thirsty until he enters Jannah। हमने ये सूरह कौसर पढ़ते वक्त पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे पानी पिलाएंगे और वो पानी पीने के बाद कौसर का किसी को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। और लिखा हुआ है कि जब हम रमज़ान में किसी को पानी देते हैं ना पीने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक देते हैं कि हम जन्नत में अल्लाह क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो है वो कौसर जो है वो हमें पीना नसीब हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि रमज़ान में कोई पानी मांगे
آپ سے نہیں بھی مانگ رہا نا، لیکن آپ بھاگ کے جا کے اس کو پانی لا کے دے دو، یہ سوچ کے دے دو کہ جنت میں قیامت کے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، اور کوثر کا دریائے کوثر کے ریور سے پانی پلائیں گے. اس نیت سے آپ اٹھ کے بھاگ کے دے دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے اس کو بہت بہت آسان بنا دیں گے. تو الحمدللہ یہ تھا پہلی حدیث ہماری. آج ہم نے جو چیزیں لرن کی کہ رمضان کی پہلے کی پریپریشن، نماز کی فکر، روزے کی فکر، قضا روزوں کی، قضا نمازوں کی، اس کے بعد اپنی زکوٰۃ آرگنائز کرنی ہے، ایک نوٹ بک بنا کے اپنے حج کا اس کے اندر حساب کتاب لکھنا ہے، ایک باکس بنانا ہے حج کا جس میں اپنے پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرنے شروع کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھ لی کہ افطاری کا کسی کا انتظام کرنا، کسی کو کھجور اور یا پھر شربت یا جو بھی آپ نے وہ دینا کرنا، یہ سب آپ یہ ایسے کام ہیں، یہ سب رمضان سے پہلے کرنے والے کام ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. انشاءاللہ ہم رمضان کی بہت اچھی فکر کریں، بہت اچھا اہتمام رمضان کا کریں. اور اب بالکل 18 19 20 ڈیز رہ گئے رمضان آنے میں، تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو الرٹ کریں کہ رمضان آنے والا ہے، یہ کام ہمیں کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ نانی کے اور دادی کے گھر میں تو ہمیں جو وہ روح افزا ہے یا ٹھینگ ہے یا پھر کھجور ہے، یہ تو کم از کم ہم پیک کر کے اچھے سے ڈراپ کر کے آ جائیں، تاکہ وہاں جب سب کھائیں تو اس کا ثواب ہمیں ایوری ڈے ملتا رہے. ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ اہتمام اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں کسی کو افطاری پہ بلا کے کھلانے کا، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، حدیث پہ عمل تو کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ کی حدیث کے اوپر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. اب جلدی سے مجھے اس کو سمرائز کر کے جلدی سے بتانے کچھ پوائنٹس کے کیا ذہن میں ہے، کیا سمجھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے شروع کریں گے نا. جلدی سے اپنے اپنے ذہن میں ریوائز کر لیں کیا پوائنٹ ذہن میں رہ گئے ہیں اور کیا اور رمضان میں ٹھیک ہے. رمضان میں اپنی نماز صحیح کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دینا ہے. اور روزے رکھنے ہیں. اور اگر پیچھے کے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کو بھی رکھ کے روزہ پورا اگر قضا ہو گیا تو رمضان کے بعد آپ وہ کہتے ہیں پورے رکھ لے روزے جتنے بھی چھٹے. جو آپ کی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں پیریڈس کے، وہ آپ کو رمضان کے بعد پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. نبیہہ ونور. اچھا. So ایک پوائنٹ از لائک اف یور پیرنٹس وہ نماز لائک نہیں پڑھے، لائک ہماری جاب ہوتی ہے اس کو لائک موٹیویٹ کرنا اور بتانا. ویری گڈ. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری جاب ہے ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا. ویری گڈ. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے، لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی کہ ہم تو بولے جا رہے ہیں اور تم سنتے ہی نہیں. اور نارملی کیا ہوتا ہے، سب دن آپس میں ہی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ہم تو اتنی دفعہ بول رہے ہیں اور تم تو سنتے ہی نہیں، اب ہم تمہیں بولیں گے ہی نہیں. تو ہم اس کو اس لیے تو نہیں بول رہے کہ وہ سنیں ہماری بات، ہم تو صرف اللہ کا ایک حکم ہے جو آگے کنوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کنوینس کرنا ہماری جاب نہیں ہے، ہمیں ان کو کنوے کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہمارے سبلنگس ہیں، چاہے ہمارے پیرنٹس ہیں، مگر ریمائنڈر ہمارے ذمے ہے. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں، اسی کو آگے والے کو بتانا کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کا جاب ہے آپ آگے دوسروں کو بتا دو، تو آپ کا ایٹ لیسٹ دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس بک کے اندر پورا ایک چیپٹر دعوت کا بھی ہے، کبھی ٹائم ملتا نہیں ہے ورنہ ہم اس کو بیٹھیں. کلمے کا پورا ایک چیپٹر ہے، دعوت کس طرح لوگوں کو دینی چاہیے اور دعوت کی کیا امپورٹنس ہے، اللہ کیا ریوارڈ دیتے ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر، جس کو اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کتنا امپورٹنٹ کام ہے جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم قرآن کلاسز یا اس طرح سے تو لوگوں کو نہیں جوڑ رہے، لیکن ہم کم از کم جو ہم نے سیکھ لیا وہ تو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لاٹس اینڈ لاٹس آف اویئرنیس لوگوں کو دینی ہے، کیونکہ خاص طور پہ جب اب آپ لوگ پاکستان میں ہو تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. جب میں پاکستان جاتی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ہم جتنا دین کی اویئرنیس لوگوں کو دے سکے، کیونکہ سب سے مسنگ چیز مجھے وہاں پہ وہی فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تو پھر بھی ہم نان مسلم کے بیچ میں تو ہم بہت فکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہم نان مسلم کے بیچ میں ہمارے بچے ہم کو تھوڑا بہت دین کے اوپر پابند رہے، لیکن کیونکہ وہاں شاید سب مسلمس ہیں اطراف میں اراؤنڈ میں، تو وہ لوگ اتنا اس چیز کو کیئر ہی نہیں کرتے ہیں. تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو مطلب ایسے فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. تو اب جب تک آپ لوگ پاکستان میں ہو نا، جب تک آپ لوگ اس کو بہت کنسیڈر کرو کہ ہم کو یہاں رہ کے دعوت کا کام ضرور کرنا ہے. کیا پتہ اللہ نے ہمیں اسی لیے وہاں بھیجا ہو،
क्या पता अल्लाह ने हमको वहाँ पे इतने दिन रखने की रीज़न ही यही बनाई हो कि हम लोगों को अवेयरनेस दे दें, और अगर एक भी आपके थोड़ा सा समझाने की वजह से अपने घर के माहौल को ठीक कर लेता है, अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेता है, तो लाइफ टाइम उसका रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देंगे, लाइफ टाइम। तो आपका जॉब ये है कि आपने सबको मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, और मोटिवेट करने के लिए अपने आप को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम समझेंगे ये सब दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं, पहले हमारे लिए है फिर दूसरों के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, और कौन जवाब दे रहा है? नूर और फातिमा, नहीं सॉरी, नबिया और फातिमा। أم، كانت تقول روزة قلت رمضان में तो सवाब में था हम लोग को और हाँ, अब नमाज वेरी गुड, हाँ बोलो, हाँ बोलो फातिमा। नमाज पढ़ने का कज़ा नहीं करने का नमाज को वेरी गुड, नमाज को कज़ा नहीं करना है और रोजे को बाद में पूरा कर लेना होता है, ठीक है। अभी तो खैर आप तो छोटी हो, आपके ऊपर तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जब आपका टाइम होगा उसके बाद आपने इसको याद रखना है कि आपका रोज़ा कभी भी कज़ा नहीं होना चाहिए। जब कज़ा हुआ कोई रोज़ा तो फिर उसको बाद में पूरा करना है। नमाज अभी से आप हैबिट बना लो कि भाई नमाज मेरी कज़ा नहीं होनी चाहिए। बॉक्स बना लो हज का, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके सब आप लोग अपना एक अलग से एक एनवलप बनाओ जिसमें कुछ ना कुछ सेविंग एवरी ईयर थोड़ी थोड़ी, कभी पॉकेट मनी मिलती है, अभी ईदी मिलेगी, ठीक है, अभी ईदी मिलने वाली है, ईद के बाद पाकिस्तान में तो बहुत ट्रेंड है ना ईदी मिलने का। तो आई डोंट नो आपकी तरफ फातिमा क्या है ईदी का सिलसिला, लेकिन आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा पैसे कभी ना कभी, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पैसों में से थोड़े से आपने एक हज का एनवलप अलग बना के उसको सेव करने शुरू कर देना है। एटलीस्ट आपका नाम तो अल्लाह उसमें लिख लेना कि जिस जो जो उसकी फिक्र कर रहा है, जो उसके लिए थोड़ी सी सेविंग कर रहा है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है, हज की मनी को सेव करना शुरू करना है इस रमजान से इंशाल्लाह। ओके, यस नबीहा। Another point is that you should feed people during Ramadan, and because if you feed people and you help lessen their burden, Allah will help you and give you mercy. And also, like, if you do miss a namaz, it's very important that you qaza'id, and you should qaza'id as soon as possible instead of accumulating qaza namazes, because then it's hard to read all of them. Very good, very good. So if we will make this habit, yes, we will now use only qaza namaz on our shoulder or on our head. So then it will be your habit. Like जब हम अपने टीचर से सुनते थे ना ये बात, तो ये बहुत हार्ड लगता था, लाइक 5 नमाज अ डे, और कोई मिस हो जाए उसको राइट अवे कैचअप करना है, लाइक इट वाज सो हार्ड टू इवन लिसन कि ये कैसे पॉसिबल है। और अब हम खुद देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी नमाज किसी रीजन से कज़ा हो जाए तो फौरन फिक्र भी होती है, और एक दूसरे को रिमाइंडर भी देते हैं कि यार उस दिन ऐसे ट्रैवलिंग में तो नॉर्मली नहीं होता, रुक के पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो गया फजर में खुदा न खास्ता आंख नहीं खुली या कोई और ऐसा रीजन हो गया। अब यहाँ पर तो विंटर में कितने जल्दी जल्दी नमाज के टाइम आते हैं, जोहर 12 पे हो रही है तो असर 2:30 पे हो रही है, कभी उसमें किसी का कॉल आ गया, कोई अर्जेंट काम हो गया जिसमें आपकी नमाज आगे पीछे हो गई, तो एक दूसरे को रिमाइंडर भी देते हैं, अरे नमाज कज़ा हुई थी तुमने पढ़ ली, तो वो पूछता है तुमने पढ़ ली, तो क्या होता है अगर आप भूल भी गए तो आपको रिमाइंडर की वजह से याद आ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने सिबलिंग्स को ये बोल के रखना कि मेरी अगर नमाज कज़ा हो जाए तो मुझे याद दिला के पूछ लेना कि मैंने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, या अपने पेरेंट्स को ये कह देना कि मेरी अगर नमाज आपको लगे कभी कज़ा हुई तो आप मुझे रिमाइंड करवा दें। बल्कि हम तो अपने टीचर से ये भी सुनते थे कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मौजूद है जो आपकी किसी फॉल्ट को पॉइंट आउट करता है, क्योंकि तब आपको मौका मिलता है कि हम उसको फिक्स कर लें, राइट। तो अगर आपको कोई पॉइंट आउट कर रहा है पेरेंट्स में या सिबलिंग में, तो एक सेकंड के लिए रुक के उसको ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाओ, उसको सोचो क्या वाकई मेरे अंदर ये वाली हैबिट है और मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपको कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका देते हैं कि फिक्स करना। एवरी टाइम उसको ये सोचो कि ये तो बोलते ही रहते हैं ऐसे, ये तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ मगर ये मुझे बोलते रहते हैं, वो हैबिट भी कभी डेवलप नहीं होने देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक दूसरे को रिमाइंडर भी देना है कि मेरी कज़ा हो जाए मुझे याद दिला दो, तुम्हारी कज़ा हो जाएगी तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। रोजे मिलके रख ले, बाद दफा कितना बर्डन लगता है रोजा रखना रमजान के बाद, तो अब आप लोग मिल के भी रख सकते हो। आप अपनी अपनी अपने सिस्टर को या अपने किसी कजिन्स को बोल सकते हो कि चलो मेरे भी कज़ा हुए थे तुम्हारे भी कज़ा हुए थे, तो हम इस डेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा मैंने यहाँ पे देखा है फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसा होता है कि रमज़ान के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इस डेट से
हम लोग जो है वो अपने कज़ा रोजे स्टार्ट कर लेते हैं, तो 7 रोजे वो मिलके कर लेते हैं, दूसरे के पास कभी अफ्तारी पे बुला लिया, क्योंकि वो रमज़ान तो नहीं है ना, तो अफ्तारी में बुलाना आना जाना इतना मुश्किल काम लगता भी नहीं है, साथ मिलके कहीं अफ्तार साथ बैठ के कर लिया, नहीं तो अकेले कर लिया, नहीं तो एटलीस्ट फ़ोन पे डिस्कस कर लिया कि हाँ मैंने भी रखा है रोज़ा, तुमने भी रखा है रोज़ा, तो वो एक थोड़ा सा रोज़ी टाइप एनवायरनमेंट लगता है, उसमें आपके रोजे आराम से कैचअप हो जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमारी ये चीज़ें मिसिंग लाइफ में नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होने से बहुत से लोगों की मिसिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फील योरसेल्फ ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का पता है, और अब हम इसको कभी भी कज़ा नहीं होने देंगे, ना अपने रोज़ों को, ना अपनी नमाज को। अभी आप लोगों की एज इतनी कम है कि अगर अभी आप लोग हज के पैसे सेव करना शुरू करोगे तो कोई रीज़न बाकी नहीं रह जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी ये बोलना पड़े कि हज तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कैसे करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हज तो डे बाय डे और एक्सपेंसिव हो जाना है। लेकिन अगर आपने उसकी नीयत कर ली और आपने अपना एक एनवलप बना लिया जिसमें आपने हज के मनी को सेव करना शुरू कर दिया, कभी खोला उसके अंदर ऐड कर दिया, और उस एनवलप को अपने उस नोटबुक में ही रखें जिसमें आप अपना सारा नमाज का और ज़कात का हिसाब किताब लिख के रखते हैं। तो जब आप उसको खोलेंगे एवरी ईयर आपको याद आ जाएगा कि हाँ मेरा हज का भी मैं कुछ साइड में सेव करती हूँ, लाइक मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं इसको सजेस्ट करती हूँ कि भाई ये सबसे ईजी वे है कि आपने एक एनवलप बना लिया, उस एनवलप में आपने साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कभी भी जब आपको लगे तो आप उसके अंदर इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा मनी ऐड करते रहो। कभी ना कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आपके लिए बहुत आसान बना देंगे कि आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी हज पे जाने के लिए, मनी को सेव करने की। बहुत से लोग हैं वो कमेटी डीसी कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं उससे अपने हज को, लेकिन लाइफ में एक दफ़ा ज़रूरी है। तो ये सब रिमाइंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान के लिए है, और इंशाल्लाह इसको याद रखना है इंशाल्लाह, ठीक है, और इसको दूसरों को बताना भी है, क्योंकि हदीस जब हम सुनते हैं या हम कोई चीज़ और रमज़ान तो वाकई में ऐसी चीज़ है कि अवेयरनेस इसकी देना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को सबको मुझे ऐसा बनाए कि हम लोगों को इसकी अवेयरनेस देने वाले हों और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुद फिक्र करने वाले हों। रमज़ान के बारे में एक जोक भी आता है कि एक गांव था, उस गांव के अंदर बहुत सारे पीपल थे जो इलिटरेट थे, दे डोंट नो अबाउट रमज़ान। तो एक दिन वहाँ इमाम साहब मस्जिद में बैठ के लोगों को बता रहे थे कि देखो रमज़ान आने वाला है, जब रमज़ान आता है तो रात में उठना पड़ता है, सहरी करना पड़ता है, फिर सारा दिन भूखा रहना होता है, फिर शाम में जब मगरिब से थोड़ा पहले फिर अफ्तारी का टाइम होता है, उस वक्त खाना खाना होता है। तो सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, सब गांव वाले होते हैं, सब इलिटरेट होते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद उनकी कोई दोबारा से इस तरह से कोई बयान होता है, कोई गैदरिंग होती है मस्जिद में, तो एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि मौलवी साहब आप परेशान मत हो, अब रमज़ान नहीं आएगा। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि व्हाट यू मीन कि रमज़ान नहीं आएगा? तो कहते हैं नहीं, रमज़ान तो आया था मगर हमने उसको मार के भगा दिया। तो मौलवी साहब उनसे पूछते हैं कि रमज़ान को मार के कैसे भगा दिया? तो कहते हैं आपने हमें बताया था ना कि सारा दिन भूखा भी रहना पड़ेगा, रात में उठ के खाओगे तो दिन भर कुछ नहीं खा सकते हो, फिर शाम में खाना होगा। तो हम तो बहुत परेशान हो गए कि सारा दिन भूखा रहना है और रात में भी उठना पड़ेगा, फिर दिन में कुछ खा भी नहीं सकते। तो हम सब गांव के बिल्कुल एंड पे जाके खड़े रहे, फिर हम देखते रहे कि रमज़ान कब आ रहा है, और जब आएगा तो हम उसको पहले ही मार देंगे। तो वहाँ से एक आदमी आ रहा था, हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रमज़ान है, तो हमने उसको मार दिया, तो अब रमज़ान नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा जोक है रमज़ान के बारे में कि लोग जब परेशान होते हैं तो फिर वो इस तरह से कोई चीज़ें सोच रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आपको हमेशा रमज़ान की फ़िक्र करने वाला, रमज़ान में अच्छे से एंटर होने वाला बनाए, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रमज़ान में याद भी रखना है दुआ में इंशाल्लाह, ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह क्लास को, फिर नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह अपने कुरान के लेसन के साथ भी थोड़ी थोड़ी हदीस हम इसको कवर करते रहेंगे, ताकि हमारा ये रमज़ान आने से पहले पहले इंशाल्लाह एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। पता आप लोगों को सब है, मगर हमें अब इसको इस नीयत से पढ़ना है कि ये हमारी लाइफ में है या नहीं है, लाइक हमारे अंदर ये हैबिट है या नहीं है, हमने लास्ट ईयर डेवलप की थी नहीं की थी, अभी जो हदीस में हमने पढ़ा है, चाहे वो लाइला पढ़ना हो, तकरुबा पढ़ना हो, किसी को अफ्तारी में कुछ भेजना हो, या फिर किसी को उसका बर्डन को लेस करना हो, ये सब चीज़ें ये सब हमारे लिए है। तो हमें अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि हमें पता है, हमें ऐसे पढ़ना है कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है या नहीं है। तो हो सकता है इसमें से हम कुछ इस साल ऐड ऑन कर लें, फिर कुछ अगले साल रिवाइज करके ऐड ऑन कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी हैबिट बन जाए, ठीक है?
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک بارك الله بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک أستغفرك ونتوب الیک ونتوب إليك سبحان ربک سبحان ربك رب العزت رب العزة عما یصفون عما يصفون سلام علی المرسلین سلام المرسلین وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. والحمد والحمد للہ لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعليكم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبركاته. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الله حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الله حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.